पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस वर्ष हमारा देश आज़ादी के 75वें साल को जोर शोर से मना रहा है। इतिहास की इन पंक्तियों में सम्मिलित सी हो चुकी हमारे देश की कहानी अपनी खूबसूरती की है। इस वर्ष आज़ादी के इस उल्लेखनीय सफर को मनाते हुए हम आज ये समारोह शुरू करते हैं। Thank you for joining us, and let us start with the wonderful session of Idea of India, a Historical Outlook by Mr. Vikas Kumar. So, not taking much of your time, let's invite Shiv Ranjani for their beautiful performance, as no event can start without a music performance.
मेरे, देश 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 मेरे. Thank you. That was indeed a very mesmerizing performance. Now, not taking much of your time, we would like to invite Dr. Aarti Yadav on the stage to welcome the guests. Good afternoon to one and all present here. I feel privileged to extend my warm welcome to all to this third session of the lecture series on Idea of India Historical Outlook by Mr. Vikas Kumar. As we all know, the fundamental values that shaped India are democracy, federalism, separation of power, integrity, and secularism. These core values has led to the momentum of development in India since independence. So now it's time to revisit the old memory lens through this talk by our own expert. So I'm not taking much of your time now. Let's start. So thank you so much. I welcome you all again. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, moving ahead, we would like to introduce today's guest speaker, Mr. Vikas Kumar. He is an assistant professor, Department of History. He is trained in MA in History, AMPhil, NET, and currently pursuing doctorate. He has a teaching experience of 7 years and 6 months. His areas of interest in teaching are medieval Indian history, global history, labor history, cultural history, religious history, and in research, labor and cultural history. He has taught many subjects. Few of them are the paper on modern Delhi history as a guest lecturer in German and Romance Studies, University of Delhi in 2015. Worked as a guest lecturer in JDMC DU 2015 and taught 2 papers on environmental issues in India and cultural transformation in Europe, respectively. Sir has won many prizes in Scout, quiz, debate, and essay writing competitions in school and college at zonal and state level, and certificates and awards for theatre from Sahitya Kala Academy, Sri Ram Center, Mandi House, and been guided by the teacher from NSD. He got first prize at Vinu Makkar cricket tournament at government's zonal level cricket tournament in GIC Meerut 2002 to 2003. He is also associated with many poetic groups like Chand Ke Julahe, Cafe Rati, Kavita Kosh for writing and reciting poetries at many renowned places like IIC, IHC, Attic Center at CP. Now, I would like to hand over the stage to Mr. Vikas Kumar. Thank you so much. Indeed, it was a very elaborated introduction. I extend my heartiest gratitude that I have been called for this talk. Respected faculty members, dignitaries, invitees, and my dear students, as I said, it is my pleasure that I have been invited here in this lecture. So as you can imagine that Azadi Ka Amrit Mahotsav is going on. So when I was called, when I was asked for the, what topic would I take, I was initially thinking to take some topic like technology, what will happen in future and all, because I was reading about it in the previous days. But then I thought that the students of commerce, especially for whom we were conducting this, I thought that we should do something that they do not read in day-to-day life. And they should be, also be knowing about, what should be understood by each and every citizen of this country. So when I was thinking about this idea of India, which has been
talked about, many scholars for years, like 50, 60 years, we are talking about that what is India, how should it be perceived, what should be the idea, and so on and so forth. So there are few questions which come in our mind. What kind of questions these could be, I have written in on the screen, if you can read them. So there are questions like, what is India? So if I ask anybody of you, you will say that India is a country which has its territory from this state to that state or something like that. So this definition is a definition which is a definition of territorial, regime. But is it something else that we do not know or we do not talk about? Is there something else? We should have to talk about it. So in today's lecture, we will also talk that what is actually India. So then there are some other questions, what it means to be an Indian. You would say that we are citizens of India, so we are Indians. It can be a very simplified answer, but there is more to it that we have to understand. That what can be an Indian or Indian, Indianness, what can be an Indianness? तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे. Why should we feel proud of being Indian? So is there anything to be, be proud of, or or there is nothing in India which we should feel proud of? So this is a major question that should be, talked about or dealt about. We will also address this question that what are those things which should be, be feeling proud of. Is loving your country or feeling proud of it is same? This is also a very, genuine question that comes to one's mind, that, we love our country or we feel proud of it, of anything. Is it same? We will also talk about it. Then what is the idea of India? Later on, we will also, the theme of our lecture, that what is India. First, before, starting my lecture, I may ask that if many of you are not comfortable in English, I can also, be bilingual in between, and you will understand that the aspect, and I would like to, make you relatable to what I say. So before, am I audible? So before I go further, I would like you to know that how nation and how state have been, understood in the history. Because if we are trying to understand India or the idea of India, first we need to understand what is a state or what is nation. So as you can read, a nation is a group of people with a common language, history, culture, and geographic territory. This is a definition. But do we fall in this definition in India? We will talk about it. We will understand that how India's nation state is different from the definition that we perceive from European ideologies. Then a state is an association of people characterized by formal institutions of government, including laws, permanent territorial boundaries, and sovereignty, political independence. Yes, there are things which we can find in India. So in that way, we are a nation state. Then the third is, a state may comprise one or more nations, as did the Roman Empire and Austria-Hungary. So within a state, there can be different or several nations. As we have the example of Austria-Hungary and Roman Empire. Roman Empire has many countries in it. So a nation may be represented in or one or more state, as in the early modern principalities of Germany. So there could be, different principalities like we saw in the Germany. Then the last one, a state comprising or dominated by a single nation is often called a nation state. So what we learn by these definitions is, people have perceived a state, nation state as the area which have similar cultural boundaries. At the same time, they have political boundaries. These are same. But in Indian context, if we understand it, it is quite different. You see, different languages are there, different cultures are there,
People have their own, fashion and patterns. So there are, innumerable varieties in India. So how can it be fitted in the, constant definition that we have been understanding from a Eurocentric perspective? यानी कि यूरोप केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारत क्या एक राष्ट्र राज्य के रूप में फिट बैठता है? वो नहीं बैठता, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से वो राष्ट्र राज्य है। ये हम आगे चलकर देखेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो वो चीज़ें कैसे इंडिया को दूसरी दुनिया से अलग बनाती। सो going further, we need to also understand that what is nationalism and how nationalist movements have taken place in the history. To understand it more vividly and more clearly, that how idea of India could be evolving, we need to understand the nationalism. जैसे कि आप देख सकते हैं, a nationalist movement may be political or cultural or both. यानी कि जब एक राष्ट्रवादी आंदोलन होता है उसमें राजनीतिक भी हो सकता है वो, और उसमें कल्चरल भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कोई कह सकता है कि हमारी एक भाषा होनी चाहिए, हमारी एक संस्कृति होनी चाहिए, उसके आधार पर हम लोग अपना एक नेशन बनाएंगे, है ना। इट कुड बी लाइक दैट। एट द सेम टाइम इट कुड बी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स इट कुड बी फॉर द पॉलिटिकल राइट्स or for the demand of the fundamental rights or any other rights which we are talking about today, like right to education, right to food, or anything else like that. Second, a political nationalist movement is a political, sometimes also military struggle by a national group for statehood or for some measures of independence or autonomy within a larger political association such as another state or as an empire. As I told you earlier, that it could be for these kind of demands. It may also be a struggle by a national group within its own nation state for wider rights for its members, or it may be a reactionary struggle by such a national group against wider rights for minority groups. So it can also be for by a group which needs something, or a minority group which demands something. So nationalist movement could be echoed with these kind of definitions or these kind of understandings. Then a cultural nationalist movement which historically often precedes a political movement is an effort to rediscover, preserve, study or reinvigorate the language or cultural tradition of a nation. जैसा कि मैंने बताया कि कल्चर को लेकर और लैंग्वेज को लेकर या दूसरी खोई हुई चीज़ों को पुनरुत्थान को लेकर भी आंदोलन हो सकते हैं। जैसे कि यूरोप में रेनेसा हुआ, बट उस समय पर नेशनलिज्म की कोई सोच थी ही नहीं। उस समय तक मतलब आज की जैसी नेशनलिज्म की सोच नहीं थी, अगर हम उसको ज़्यादा क्लियरली बोलें तो। लेकिन उसमें बात की गई पुरानी परंपराओं को, पुरानी प्रतिष्ठाओं को प्रतिस्थापित करने की, उन्हें बार बार उनके पुनर्जागृत करने की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो है दुनिया भर में होते रहते हैं। भारत में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के लिए हुए भारत में, और किस तरीके से चीज़ें बनी। तो जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? वो डोमिनेंटली अगर हम बात करें तो 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस, और फिर फ्रांस के दूसरे एरिया में होते हुए वर्ल्ड वॉर 1 या उसके बाद भी हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि दुनिया में नेशन स्टेट्स होते हैं, दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी होते हैं। तो वी अंडरस्टूड दैम फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इंडिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट। नाउ you will also understand that why I was talking about the nation state. जैसे कि मैंने पहले कुछ उदाहरण भी दिए थे कि भारत का जो नेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, डाइवर्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे कि वो सब बातें हमने शुरुआत में क्यों की। क्योंकि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं, एंड इट वॉज नेसेसरी टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट नेशन स्टेट
can be, or it is, and what is nationalist movement or something like that. Then only you will be relating yourself to the nationalism that we talk so often but we do not understand. यानी कि राष्ट्रवाद की हम लोग चाहे बगाहे इधर उधर सब बात तो करते रहते हैं कि राष्ट्रवाद है, ये है, वो है, बट हम राष्ट्रवाद को एक्चुअली समझते नहीं हैं। राष्ट्रवाद की जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं या उसमें जो अतिवाद होता है उसमें और सामान्य राष्ट्रवाद में जो अंतर होता है उसको हम लोग समझ नहीं पाते, उनकी बारीकियों को हम लोग समझ नहीं पाते। जो भारत का राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से दुनिया के राष्ट्रवाद से अलग है ये भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उससे पहले कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आइडिया ऑफ इंडिया पर आऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म, कुछ लोग उसको पेट्रियोटिज्म से भी जोड़ देते हैं, यानी कि राष्ट्रभक्ति जिसे हम कहते हैं, वो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि शायद पहले यानी कि एंशिएंट टाइम्स में भी रहा होगा, बट राष्ट्र की अवधारणा ऐसी नहीं रही होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन वुड नॉट हैव बीन द सेम विच इज टुडे। ये पहले भी रहा होगा, अपने देश को लोग प्यार करते थे, उसकी कल्चर को प्यार करते थे, एक ही तरह के लोग एक जगह रहना चाहते थे। ये राष्ट्रवाद के कुछ गुण, ये जो गुण हैं ये यूरोप सेंट्रिक हैं, जो कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और ऐसे देशों ने 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद नेशनलिज्म की परिभाषाओं को गढ़ना शुरू किया और उन्होंने इस नाम पे लोगों को एक करके देश बनाने शुरू किए कि आपकी कल्चर एक है, आपकी भाषा एक है, आपकी एथनिसिटी, आपकी रेस एक है और आपके रीति रिवाज एक है। तो इन नामों पर जब नेशंस बने तो वो एक क्या हुआ, यूरोपीय राष्ट्रवाद हुआ। ये कौन सा राष्ट्रवाद हुआ? यूरोपीय किस्म का एक राष्ट्रवाद है जिसमें ऐसा माना जाता है कि एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही जैसे दिखने वाले लोग जहां पर रहेंगे उनका एक देश बना देंगे और वो एक नेशन हो जाएगा। क्या ये परिभाषा भारत में फिट हो सकती है? नहीं हो सकती। जब ये परिभाषा भारत में फिट नहीं हो सकती तो हम यूरोप के राष्ट्रवाद को भारत पर थोपने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों हम हमेशा ऐसी बात करें कि भारत देश में एक ही भाषा हो, एक ही फॉर एग्जाम्पल धर्म हो या एक ही संस्कृति हो, तो हम ऐसी बात क्यों करें? क्योंकि इंडियन ढांचा तो ऐसा है ही नहीं। भारत का जो राष्ट्र बना है, भारत का जो नेशन बना है, वो यूरोसेंट्रिक फॉर्मूले पर नहीं बना है। यूरोसेंट्रिक फॉर्मूला क्या था जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें एक जैसी भाषा, एक जैसा धर्म, एक जैसी संस्कृति, एक जैसे विचार और एक जैसी रीति रिवाज आदि हो सकते हैं। तो ये पहले आपको समझने की जरूरत है। जो आइडिया ऑफ इंडिया को समझने में आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप आइडिया ऑफ इंडिया तभी समझ सकते हैं जब आप भारत के मूल को समझें। भारत में आप अगर हम यूरोप से आप कंपैरिजन करें, यूरोप अगर हम आबादी में देखें तो पूरा यूरोप भारत के बराबर नहीं होगा। अगर हम क्षेत्रफल में भी देखें तो थोड़ा सा बड़ा होगा भारत से, लेकिन वहाँ पर 25-30 देश हैं। हमारे यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी संस्कृतियाँ हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, कितना सारा पहनावा है, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि हमें यूरोसेंट्रिक होकर नहीं सोचना, यूरोप केंद्रित अवधारणा के आधार पर नेशनलिज्म को नहीं समझना है। हमारा नेशनलिज्म एक भाषा, यानी कि कुछ लोग जो कहते रहे हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो हमारे राष्ट्रवाद के अंदर कहीं फिट नहीं बैठता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप समझिए कि जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा भारत के 30-40% लोग बोलते होंगे, तो क्या ये पूरे देश की एक भाषा हो सकती है? नहीं हो सकती। और क्यों हो? जरूरत क्या? क्या कोई राष्ट्र डाइवर्सिटी के साथ सस्टेन नहीं कर सकता? हम तो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आइडिया ऑफ इंडिया भी ये कहता है कि आप डाइवर्सिफाइड हैं, आप यूरोसेंट्रिक परिभाषाओं में निहित होकर अपने राष्ट्रवाद को समझ नहीं सकते। अगर आप उसकी नकल करेंगे,
अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को उनकी पहचान को मानने नहीं देंगे और उनके पहनावे को मानने नहीं देंगे, उनकी भाषाओं को अब जगह नहीं देंगे, तो क्या होगा? विवाद उत्पन्न होगा और भारत में भी कई सारे राष्ट्र बन जाएंगे। तो हमें अक्सर इन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रवाद है उसके कुछ अंग हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें डाइवर्स होना, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप सुन सुनकर बहुत सारे लोग बोर भी हो चुके होंगे अब तक, लेकिन ये भारत की वास्तव में एक बहुत बड़ी पहचान है जिसको हम लोग समझते नहीं। हम लोग ये नहीं समझते हैं कि इतना बड़ा एक राष्ट्र जिसमें इतनी विविधता और वो एक साथ चल रहा है, तो उसके पीछे जरूर ही जरूर कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि और ये जो कारण हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल लेवल पर सफल नहीं होते। यानी कि जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं डेमोक्रेसी, या हम सोचते हैं कोई किसी तरह का सिस्टम हमने सोचा और वो पूरी तरीके से हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन अगर हमने विचार भी किया उसका, तो भी ये एक बड़ी बात बन जाती है। तो आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है। हालांकि आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, डेवलपमेंट तो कुछ खास है नहीं, और सही बात भी है, डेवलपमेंट उतना कुछ खास है नहीं, उसकी हम बात करेंगे, किस तरह की डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस पर मैं आऊँगा। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, I will go one by one and I will start with democracy. When I was, understanding this topic and I was going through some of the readings, I got to know Yogendra Yadav is one of the prominent scholars of India who has, given this, this kind of structure in which these 3 points are also very relevant. I'm talking about them. So democracy is one of them. So democracy, you will say that democracy, as we have understood from our books, ग्रीस में पहली बात शुरुआत ऐसी बात करते हैं, हम लोग इतिहास में समझते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग भी भारत में कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ भी गणराज्य थे, लिच्छवी गणराज्य था, बट दिस इज वेरी डिबेटेबल, दिस इज नॉट क्वाइट क्लियर दैट was it actually from there or it was something else. तो जब हम पुराने संदर्भों में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रीस में ये हुआ वो हुआ, बट आधुनिक डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो ये यूरोप से ही निकला है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी which has been derived from the global phenomena और global ideas, जो भारत में बहुत अच्छे से इसका आत्मसातीकरण हुआ, डेमोक्रेसी को भारत में बहुत अच्छे तरीके से अपनाया गया। कैसे आप इसको कह सकते हो? You cannot imagine in 1947 the literate pupil would have been more than 40% or 30%. 1947 में 30-35% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जबकि जब डेमोक्रेसी का जब बात की जा रही थी दुनिया में, और सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा 1215 में बात की कि लोगों के पास कुछ राइट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं 1688 की, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अमेरिकन रेवोल्यूशन की, एंड इट वाज ए लॉन्ग हिस्ट्री एंड इट वाज वेरी ग्रेजुअल। तो भारत में जब डेमोक्रेसी को लिया गया 1952 में, लोग कह रहे थे नेहरू जी को कि ये जो फॉर्मूला यूरोप का लेकर आए हैं ये यहां पर चलेगा नहीं, but it was our win, it was our conquest, that how we have been able to not only implement it but it has survived beautifully. हम लोग देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी एकदम परफेक्ट हो गई भारत में और यहां पर एकदम अनुशासन आ गया, लेकिन यू कैन नॉट इमेजिन 1947 या उसके बाद 30-35% लोग जहां पर पढ़े लिखे हों केवल, और बाकी लोग बिल्कुल अंगूठा छाप हों, वहां पर ये डेमोक्रेसी सर्वाइव कर जाएगी। एंड एट द सेम टाइम इट वाज नॉट ओनली सर्वाइविंग, वी वर थिंकिंग बियॉन्ड दैट, वी वर थिंकिंग टू रीच टू द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो सबसे नीचे का तबका, सबसे अंतिम व्यक्ति है, जिसे अंत्योदय कहते हैं, उस तक जो पहुंचने का जो विचार था उसकी भी बात हो रही। तो भारत में जो डेमोक्रेसी, जो कि यूरोप
ने गढ़ा उसको मॉडर्न टाइम्स में, भारत ने उसको कितने अच्छे से अपने अंदर फिट किया, और ना केवल फिट किया बल्कि उसको आगे बढ़ाया, आगे इस स्तर पर बढ़ाया कि हम लोग ग्राम पंचायतों तक डेमोक्रेसी को ले गए। हम बहुत डीप लेवल पर डेमोक्रेसी को ले गए और लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया। यस, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां पर पूरे के पूरे जो है पेटी को, बक्से को चुरा लिया गया। यस, देयर हैव बीन इंसिडेंट कि जब अच्छे से जहां पर मतलब दंगे हुए या ठीक से चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन डिस्पाइट दैट वी हैव सेवरल एग्जांपल्स जहां पर बहुत ही निम्न वर्ग के लोग भी बहुत ऊपर तक पहुंचे बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी दैट वी have, and we have been able to make it implemented in a much better way. Look at the example of Mayawati, Sushri Mayawati. She has been the chief minister of Uttar Pradesh. She is from the Dalit background. She is a woman and a Dalit, which has been in Indian situation, people would say यहाँ पर पितृसत्ता रही है। पितृसत्ता तो पूरी दुनिया में ही रही है, लेकिन भारत में पितृसत्तात्मा तक काफी ज्यादा रही है। उसके बावजूद एक दलित होना, एक स्त्री होने के बावजूद आप चीफ मिनिस्टर बने, तो इट इज द विन ऑफ ए डेमोक्रेसी। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर थिंग्स which we have not only adopted but we have brought them forward, उनको हमने आगे बढ़ाया। तो भारत की डेमोक्रेसी का ये एक अद्भुत नमूना था। जब भारत में डेमोक्रेसी आई तो महिला और पुरुषों को अधिकार, जो सफरेज राइट जिसे हम कहते हैं, वोटिंग राइट्स हैं, वो एक साथ दिया गया। दुनिया में रियली इससे पहले कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो इंडिया वाज द फर्स्ट टू गिव राइट टू बोथ मेन एंड वीमेन इक्वली एंड एट द सेम टाइम। तो ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत थी। तो जब हम इंडियननेस की बात करते हैं, जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सो डू वी हैव दीज थिंग्स इन अस, लाइक द डेमोक्रेटिक राइट्स, लाइक द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, द डेमोक्रेटिक एथोस that we should have? Do we have in them? If we have them, then truly we can be Indian, otherwise we are not Indian. So the question that I asked earlier, that are we Indian? How can we be Indian? So we cannot be Indian by not only taking birth here. The Indianness is that what we need to follow, what we have learned from our ancestors like Nehru, Sardar Patel and Gandhi ji, and so on and so forth. So these people who were the champions of democracy, they had struggled a lot to assert it here. We need to understand that. And it not only implemented, as I told you earlier, we kept it, we carried it forward. We need to understand that. So democracy is the first that we know is the idea taken from Europe, but we took it well and we brought it further. Then the diversity, which I was talking earlier as well, but we can have some other points as well. That diversity which we have is enormous. यूरोप की जब हम बात कर रहे थे, यूरोप में मैंने आपको बताया कि यूरोप कई सौ सालों के जब हम इतिहास पढ़ते हैं, उन लोगों ने क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर, रेस के नाम पर अपने अलग अलग राज्य बनाए, अलग अलग देश बनाए, और जहां पर जो लोग रह गए उनको जबरदस्ती खदेड़ कर दूसरे देशों में भेजने की कोशिश की, और जहां नहीं भेज पाए वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स हुई या होती रही हैं। लेकिन हमने जो कोएग्जिस्टेंस दिखाया है फॉर लास्ट 5000 ईयर्स, यहाँ पर अलग अलग तरह के इन्वेजन्स के बावजूद, अलग अलग तरह की सभ्यता और संस्कृतियों के पनपने के बावजूद जो चीज़ें हम लोगों ने साथ लेकर चले हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत मजबूत नमूना है। और हम लोग बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होते दूसरी डाइवर्सिटी। यूरोप में आप जाएंगे, थोड़ा सा कुछ अलग मिलेगा, आपको बिल्कुल नकार दिया जाएगा। तो हमारी जो खूबसूरती है
वो डाइवर्सिटी की खूबसूरती है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेकुलरिज्म है. एंड दैट वी हैव बीन सेइंग इन आवर शास्त्रास, सर्वधर्म धर्म संभाव. तो ये ठीक है, सेकुलरिज्म का जो वर्ड है, सेकुलरिज्म की जो बात है, वो भी यूरोप से ली हमने, लेकिन ये बहुत पुराना फिनोमेना हमारे पास पहले से था. वो अलग बात है कि 18, 19, 20th सेंचुरी के बाद जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं यूरोप से, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ थी, लेकिन जब चूंकि हमने अच्छे से अपनाया उनको, तो हम यूरोप का उसमें बहुत बड़ा योगदान है. बट क्या वो योगदान वहीं तक सीमित रह जाता अगर हम उसको आगे ना बढ़ाते? या भारत जैसे देश में, जिसमें मैंने बताया इतने इलिटरेट लोग हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर वो आगे नहीं बढ़ती है, अगर उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी यहाँ पर सर्वाइव नहीं करती, तो क्या होता? तो सेकुलरिज्म की जो मैं बात कर रहा था आपसे, सर्वधर्म संभाव की, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी प्रैक्टिस. अब देखिए यहाँ पर लोग, यहाँ का जो सेकुलरिज्म है वो यूरोप के सेकुलरिज्म से अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट फ्रांस. फ्रांस में जब सेकुलरिज्म होता है, सो दे आर इन ए डिनाइल मोड. दे से नो वन इज अलाउड टू प्रैक्टिस एट ए पब्लिक प्लेस anything that where it if it is a burqa or a turban or anything else or a dadi or something, they would deny it. They would say that we are secular, you need to be egalitarian and similar. आपको समान होना है, आपको समान दिखना है, और ये सब कुछ ऐसी बात करेंगे. तो ये क्या है? This is a very hard kind of a secularism that they follow. But here in India, except few examples, we allow it elaborately. People practice what they want. कैसे? लोग अपने सारे के सारे मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं. यहाँ पर 50 तरह के नए धर्म. यहाँ पर जहाँ जिनको शरण नहीं मिली, वहाँ पर यहाँ पर मिली पारसियों को, है ना. यहाँ पर सारे धर्म हैं, यहूदी भी है, सारे धर्म हैं यहाँ पे. जो which the religion which have not been originated in India have also been given shelter. And they did not get the shelter, but they proliferated. यहाँ पर उन्होंने केवल शरण नहीं ली, यहाँ पर विकसित हुए, बढ़े, और यहाँ पर नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स भी बने उनके. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव देवबंद स्कूल एंड बरेलवी स्कूल हेयर इन इंडिया, एंड इट वाज, ये कहाँ पर होना चाहिए था? अरब में या कहीं पर. और इन स्कूल्स की बातें पूरी दुनिया में मानी जाती हैं. यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो. तो ये भारत ही है जिसने इतनी सारी चीज़ों को अपनाया, और न केवल अपनाया बल्कि उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया, है ना. ये चीज़ हमको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है. तो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट is also one of the three components, and people will analyze, or they will imagine that the development can also be economic. The development can also be political. The development can also be in the sphere of some technology or something. But that development has many means. Like we try to manage things with different kind of approach. Like one of the approach that we have is the miscellaneous approach of economy. This is one of the experiment and the development that we have seen in India after independence. You take the example, भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग पाते हैं. किस तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था? जिसमें आप सोशलिज्म के भी गुण देखते हैं और कैपिटलिज्म के भी गुण देखते हैं. The people from commerce will relate with this. They will think that capitalism is very necessary. Without capitalism, nothing can happen. You cannot see the cars and railways and everything, the development. Without capitalism, it was not possible. Yes, it was not possible. But sometimes in a country like India, is it not necessary to have some of the institutions under government which directly help people from the subaltern background or the deprived background? Don't you agree with me? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो ढांचा भारत ने अपनाया, क्या ये एक नए तरह का डेवलपमेंट नहीं था, नई तरह का इनोवेशन नहीं था?
जिसमें भारत को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आज के पिछले 10-20 सालों से हम लोग बहुत तेज़ी से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन क्या इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं अगर हम इसमें बैलेंस बनाकर नहीं चले, क्योंकि 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल डिप्राइव्ड क्लास, एंड एज गांधी जी सेड और नेहरू हैड इन हिज इमेजिनेशन कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो जो लास्ट आदमी है उस तक क्या वो पहुंच रहा है। तो कैपिटलिज्म से आप एक बुलेट ट्रेन तो ला सकते हो, you can make a very beautiful airport or a things which are very necessary for a development of country, but they will be availed, they will be used prominently by the upper class of a country, which is very few in a country like India. So the structure of the miscellaneous economy which had prevalent here in India had done a lot of favor to the people who were from the deprived class. You can imagine the schools, if there have not been the government schools with minimal fee, have many of us could come here to educate other people, have many of us could go to a place where they could make a change. No, they could not have. So you need to understand, we need to understand कि भारत ने जो ढांचे दुनिया से सीखे उनका भारतीयकरण किया, उनको इंडियनाइज किया और भारतीय ढांचों में फिट करने की उनको कोशिश की। और ये इस तरह की योजनाएं, चाहे वो अंत्योदय योजना हो, चाहे वो किसी को जैसे आजकल मनरेगा और इस तरह की योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं उस सोशलिज्म का एक रूप है जो वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश करता है। India could not become a welfare state because it did not have that much of economic power, or it was not that rich a country, but it tried its best in various ways to give comfort to its people. क्योंकि भारत के जो प्रणेता थे, शुरुआती लोग थे आज़ाद भारत के, जिसमें मैंने नाम लिया था अभी नेहरू, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, इनमें से जो 3 लोग थे वो ज़्यादा लंबे सर्वाइव नहीं कर पाए। नेहरू वॉज देयर फॉर नेक्स्ट 16-17 ईयर्स, और उन 16-17 सालों में नेहरू ने जो बहुत सारी योजनाएं चलाई उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि हम सोशलिज्म के गुण को पूरी तरीके से ना छोड़ दें। भले ही 1990s में भारत को कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ा, वो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो फ्री इकोनॉमी और फ्री ट्रेड, ओपन डोर पॉलिसी, इनका पालन कर रही थी। बट उससे पहले जो चीज़ें हम लोगों ने की और करने की कोशिश की, वो आइडिया ऑफ इंडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम ना केवल इंडिया को लेकर चलते हैं, हम भारत को भी लेकर चलते हैं। और भारत क्या है, वो गांव में रहने वाला वो मजदूर जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हम अक्सर उसकी इमेजिनेशन को छोड़ देते। मेट्रोपॉलिटन में रहते रहते, मेट्रोस में चलते चलते, प्लेन्स में घूमते घूमते, वी थिंक दैट वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, बट जो वास्तव में इंडिया है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, उस पर हम लोग नहीं जा पाते। तो प्रोसीडिंग फर्दर, आई हैव सम other things like 4 principles, pillars of Nehru's legacy to India. So we discussed democracy, we also discussed diversity, which could be pan-Indian secularism or many other aspects of culture and all. Then the socialist economy which I was talking about, है ना, socialist economy को एक बहुत important pillar के रूप में नेहरू जी और उसके बाद भी देखा जाता रहा। अभी तक भी हमारी इकोनॉमी में ये एक भाव रहता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के काम जरूर हों कि उन लोगों तक पहुंचे जो डिप्राइव्ड क्लास हैं। वो कितना पालन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज ए डिफरेंट क्वेश्चन। बट द आइडिया दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ सक्सेसफुल हैव वी बीन। आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडिया एज ए इंडिया, दैट हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ वी कैन बी imagine ourselves to be progressive in a different way. Foreign policy of non-alignment. So the 4th thing that we have not discussed till now, you all know that
as we see the era of 1950s, which is also known as the era of decolonization, many countries got freedom like India. They were choosing their groups. Some were going in the Western bloc, some were going in the Eastern bloc. Western was the US and the allies. Eastern were the Russia and the allies. है ना? कुछ लोग इधर जा रहे थे, कुछ लोग उधर जा रहे थे. भारत के सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ कि हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग क्या करें और किससे हमारा ज़्यादा फायदा रह सकता है. But as we know, Nehru was a great leader, international leader he was, and वो वुड्रो विल्सन का जो 14 सूत्री कार्यक्रम था जो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था राइट टू डिटरमिन मतलब सभी राज्यों को अपने हिसाब से चुनने का अधिकार है कि हम कैसा राज्य चाहते हैं, कैसे चलाना चाहते हैं. तो नेहरू जी भी उस आइडिया से बहुत मुतासिर थे, प्रभावित थे. उन्होंने चुना नॉन अलाइनमेंट, यानी कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता था कि आज हम अगर किसी का साइड लेंगे तो कल हम दूसरे से हेल्प नहीं ले पाएंगे. एंड वी एज ए पुअर कंट्री, वी बीइंग फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड Indians, he chose not to be in any group. Rather, he chose to be non-aligned. He said, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और हम अपनी पॉलिसीज में जो है हम रशिया के भी साथ हैं जहां हमारा फायदा है और हम अमेरिका के साथ भी हैं जहां हम लोग फायदा ले सकते हैं. तो ये जो पॉलिसी का एक सार है कि हम जो है ये तय करेंगे अपने हिसाब से कि हमारे लिए क्या अच्छा बुरा है या कौन हमें अच्छा या बुरा लग रहा है. ये भी आइडिया ऑफ इंडिया का एक सार है. आज भी इसका हमें फायदा मिल रहा है ना. आज भी भारत के ऊपर बहुत प्रेशर था. यू ऑल नो दैट रशिया एंड यूक्रेन आर एंगेज्ड इन ए वॉर एंड इंडिया वाज मच इन ए प्रेशर नॉट टू टेक ऑयल फ्रॉम क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, बट इट टुक इट. ये क्यों कर पाए वो? क्योंकि नेहरू का एक विजन जो नॉन अलाइनमेंट का था, उसने पहले से भारत की छवि बनाई हुई है कि हम तो भाई किसी के साथ नहीं है, जब हम तो उसके साथ है जो ठीक लगेगा हम. तो ये बहुत फायदा करता है. तो ये दिस इज आइडिया ऑफ इंडिया दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स which need to be understood, not only need to be understood but also need to be followed. कि भारत का विचार क्या है ना. भारत केवल एक टेरिटरी नहीं है ना. जैसे कि मैंने बताया कि अपने आप में एक कॉस्मोपॉलिटन व्यू पॉइंट उभर कर आता है भारत से, और कितने अच्छे से वो फिर भी सरवाइव करता है और कैसे आगे बढ़ता जाता है, कितनी डाइवर्सिटी के साथ. ये अपने आप में अनोखापन है. और ये हम लोग दावा नहीं करते कि डाइवर्सिटी कल्चर ये है भारत में. आप देखोगे अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पाओगे दूसरी दुनिया, जब दूसरे देशों में आप घूमने जाएंगे, बहुत सारे लोग ये देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको. तो इस तरीके से हमें आइडिया ऑफ इंडिया को समझना होगा. देन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दीज वर 4 men envisioned for free India in the 1940s. Gandhi's moral righteousness, Sardar Patel's firm hand on the administration, Ambedkar's knowledge and legal insight, है ना, Nehru's human and non-sectarian vision. What is this non-sectarian? As I told you earlier as well, non-sectarian means unreligious. We have this reflection in each and every policy implemented by Nehru. Even this era, which is the first 15 or 16 years after the independence, we know he even had a meeting with the filmmakers and he inspired them to make movies and films which could reflect the harmony of India, तो अक्सर आप जब 1950-60 की मूवीज देखेंगे उसमें पाएंगे बहुत सारी मूवीज जिसमें एक कैरेक्टर मुसलमान और हिंदू तो होगा ही, जिसमें गहरी दोस्ती होगी, जिसमें गहरा भाव होगा, या इसमें एक ऐसा गाना जरूर होगा जो आपको आपकी कल्चरल रिलीजियस हार्मनी को बढ़ाने का काम करे. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से
काम किया आइडिया ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने का। नेहरू आर्टिकुलेटेड एंड पुट टुगेदर ए consensus as said before among us stalwarts like Sardar Patel, Maulana Azad, Baba Sahab, Sarojini Naidu and even scientists like Homi Bhabha, Meghnad Saha, Vikram Sarabhai and others. So what do you understand by this? This is like the Nehru not only himself was adamant to this idea that India's democracy could survive even if we have a big number of people from other religion as well. He also convinced people from different sects, different sectors, that they can also be the contributing factors in this regard. So all in all, as we understand the idea of India, the impact of Nehru was huge. And he, as you can read, this was the idea of nation Nehru bequeathed to us, and in it India was not a monolith but a palimpsest of diverse races, religions and linguistic groups. तो आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो बिना नेहरू के इन आइडियाज़ के बिना हम इनकी बात नहीं कर सकते. So again we understand that democracy, secularism and then socialism and other aspects of the Indian nation, which we know emerging from 1947, but the soul and the essence was way before it. जो हम बात करते हैं 1947 के बाद हमारा राष्ट्र बना, राज्य बना, उसमें एक डेमोक्रेसी आई, उसका एक संविधान बना, उसकी संविधान की एक आत्मा है, उसकी एक समझ है. लेकिन ये चीज़ें जब हमने इम्प्लीमेंट की और समझी और यूरोप से कुछ ग्रहण की, लेकिन उसमें भी भारतीयता का एक तत्व मौजूद था, जिसको हम में से बहुत सारे लोग 5000 साल पुरानी एक सभ्यता के रूप में जानते हैं. बट क्या हम ऑलवेज उस पर ग्लोरीफाइड हो सकते हैं? क्या उसको हम 5000 साल पहले कितना अच्छा होता था या बुरा होता था, क्या उसको हम आज कर सकते हैं? नहीं. अगर हमें आज के आइडिया ऑफ इंडिया की बात करनी है तो हमें इन्हीं नोशंस की बात करनी पड़ेगी, जो नोशंस हैं डेमोक्रेसी में, जो नोशंस हैं डाइवर्सिटी में, जो नोशंस हैं डेवलपमेंट में, और जो नोशंस हो सकते हैं सोशलिज्म जैसे एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट करने में, जो कि हो सकता है बहुत सारी दशाओं में बिल्कुल ठीक ना हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर भारत जैसी स्थिति में आज भी फिट बैठता है. तो ये भारत की एक आत्मा, भारत का एक विचार इस तरीके से समझा जा सकता है. थैंक यू सो मच. कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? कोई रिमार्क कुछ करना चाहते हो? हालांकि आप लोग फोन में लगे हुए थे ज़्यादा, लेकिन ठीक है. चलो. हाँ हाँ, मुश्किल मत पूछना कुछ, है ना. बिल्कुल. First of all, I am not the expert of economy. There are people from commerce, but I would like to answer as he has asked. As I understand it, we did not implemented the socialism completely और कैपिटलिज्म कम्प्लीटली. हमने पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था को या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया. हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया. उन ढांचों में जहां हमें ज़रूरत थी उन चीज़ों की, वहाँ हमने सोशलिज्म को अपनाया. जैसे शिक्षा में सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी. यहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल्स भी देखते हो और वहाँ पर पब्लिक स्कूल्स भी हैं और अच्छे भी रहे हैं बहुत. अभी थोड़ा सा लेवल जैसे आपका ये कॉलेज है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. ये सरकारी कॉलेज है. वो अलग बात है कि कभी कभी थोड़ी फीस बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट ये एक सोशलिज्म का पार्ट है, क्योंकि आज भी जो प्राइवेट
जो चीज़ें हैं उनसे काफ़ी कम होगा इसका। वो दूसरा, नॉट ओनली एजुकेशन, हमने सड़कें, आर्मी, अस्पताल, इनको हमने सोशलिज्म के अंदर भी रखा और कैपिटलिस्टों को भी मौका दिया कि आप भी बड़े बड़े अच्छे अस्पताल बनाओ, जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आकर उनमें भी इलाज करा सकते हैं, यद्यपि हम साथ साथ अपने दूसरे चीज़ों को भी ठीक रखें। तो भारत जैसी कंडीशन में एक मिश्रित इकोनॉमी ने स्लाइटली बेटर काम किया जहाँ तक हम समझते हैं। अगर ये पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो जाती, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, उस समय पूरा दुनिया में से कोई नहीं हो सकता था पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, क्योंकि कैपिटलिज्म उस लेवल तक नहीं पहुंचा था। दूसरी बात, अगर पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो भी जाते तो आप 10% लोगों के लिए कुछ कर पाते, है ना। 90% लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते, आज 20-25% है, फिर वो 80-90% होते, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये जो है ये हाइपोथेसिस है, हमारे विचार हैं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। हमारा विशेषज्ञों का या स्कॉलर्स का ये विचार होते हैं चीज़ों को लेकर। तो आपका सवाल सही है कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना लेते तो कहते हो कि बहुत ज़्यादा हो जाते, लेकिन भारत जैसी जनसंख्या के लिए उस समय भी हम 40 करोड़ थे, है ना, उस समय भी हम 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़ हैं। तो हमारा कैपिटलिज्म से केवल काम नहीं चल पाता। अब 1990s के बाद कैपिटलिज्म ने जो बूम दिया और जो बेस बनाया था सोशलिज्म ने, उससे मिलजुल कर हमारी इकोनॉमी लगातार बेहतर शायद हो जाए। कभी कभी उतार चढ़ाव दुनिया भर में आते रहते हैं। धन्यवाद। और Thank you so much, sir, for your wonderful words. Now, I would like to invite Nagendra, sir, for the token of gratitude to Mr. Vikas Kumar. though it was not needed, but thank you so much. Now, I would like to invite Shreya Verma for her wonderful dance performance. Gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this event a great success. I extend my gratitude to Mr. Vikas Kumar to take out time from his busy schedule for us and make this event more eventful. But before we leave, we would like to invite Mr. Shivam Jindal for the vote of thanks. First of all, I would like to thank Mr. Vikas Kumar sir for the insightful session. So it was truly a learning experience for all of us. And also I would like to thank our principal sir SP Agarwal sir and also our TIC HL Nishal sir and also the co-coordinators Narendra Pal sir and Archana ma'am and the organizing members Aarti ma'am, Sonia ma'am and Devdas sir and the RAMCOM team and also all the participants for coming. Thank you so much.